Okay, let us begin. We are starting with the chapters that we have already completed. First, we will start with chapter number 4, that is bills of exchange and promissory note. So, we have to clearly revise this chapter. Now, मेरे हिसाब से थैंक यू मेरे हिसाब से this chapter में what is the one point that you have to remember is there are how many types of bill. कितने types of bills आप लोग ने ये chapter में पढ़े हैं? 2 types of bill. Which are the 2 types of bills of exchange that we have studied in this particular chapter? Out of that, one type of bill was already there in SYJC and वो आप SYJC के एग्जाम में लिख के भी आए हो. Yes, that is trade bills. So दो चीज आपको याद रखना है. In fact, one thing that you have to remember is there are 2 types of bills of exchange. One is something called as trade bill. Another is something called as accommodation bill. So bills of exchange में trade bills and accommodation bill. What is the difference between trade bills and accommodation bills? Yes, that means trade bills में there is an debtor-creditor relationship between the 2 parties. And when I say debtor-creditor relationship, मतलब there has been a transaction of purchase or sale of goods. In fact, there is a transaction of purchase sale. So उसके वजह से there is a debtor-creditor relationship. But there is no debtor-creditor relationship. Then also 2 parties draw a bill of exchange. Such type of bill is called as accommodation. Accommodation bill is for mutual accommodation. That is what they say. Accommodation bill is drawn when there is need of funds. One party may be in need of funds or both the parties may be in need of funds. So they may draw accommodation bill. I think bills of exchange ka basics everybody knows. With the first sum, we will clear the basic. Chalo. We have to pass or show journal entries with narration लिखा है. तो एटलीस्ट हम लोग एक सम में दोनों सम जो हम करने वाले हैं वो विथ नरेशन ही करेंगे. Once and for all, you should know what are the narration. चलो, I hope you have drawn the format. Books of Akshay. If you have read the first line, clearly लिखा है Akshay draws. मतलब who is the drawer? Akshay is the drawer. And who is the drawee here? Vishal is the drawee. Okay, so we have to pass the first journal entry on 1st January 2018. चलो, date column में लिखो 2018. Next line write down Jan 1 2018. Jan 1. बोलो, what is the journal entry for bill drawn and accepted by Vishal? Bills receivable. अभी यहाँ पे 2 bill receivable है, तो we have to clearly name them. Bill receivable 1 account debit. Bill receivable bracket में लिख सकते हो number 1. Bill receivable number 1 account debit. Bill receivable number 1 account debit 16,000. Bill receivable number 2 account debit 25,000 to Vishal's account. ये दोनों का टोटल कितना है? 40. Okay, this is which bill? Trade bill क्या accommodation bill? आपको कैसे पता चला this is trade bill? Yes, if there is accommodation bill, they will use the words like mutual accommodation, remittance, etc. तो trade bills में there is a debtor-creditor relationship. Such debtor-creditor relationship arises due to what? Sale और purchase. तो sale और purchase का तो transaction ही नहीं है. So that transaction must have taken place in the
पास्ट में भी 1 जनवरी 2018, तो लास्ट मंथ में, दिसंबर एक्सेट्रा में हो सकता है सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा। ठीक है, चलो नाउ नॉर्मली आफ्टर ड्रॉइंग द बिल व्हाट इज द नेक्स्ट फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन? नेक्स्ट क्या होता है? सी जस्ट सॉल्व करने के लिए सॉल्व मत करो, अगर मेरे को सॉल्व ही करवाना था तो मैं होमवर्क दे देता था, कभी सॉल्व करके हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि बिल ड्रॉ करने के बाद होता क्या है, तो उसको हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। हाउ मेनी ट्रीटमेंट्स पॉसिबल? व्हाट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट? तो रिटर्न किया तो व्हाट इज द एंट्री? किन किसके बुक्स में? ड्रॉवी के बुक्स में। ड्रॉवी के बुक्स में तो ट्रीटमेंट का एंट्री नहीं आता है, ट्रीटमेंट का एंट्री इज नॉट देयर। ओके, व्हाट इज सेकंड पॉसिबिलिटी? डिस्काउंटिंग। व्हाट इज एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स, बट यहाँ पे डिस्काउंटिंग भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या होता है? एंडोर्समेंट। व्हाट इज द एंट्री फॉर एंडोर्सिंग? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे एंडोर्स भी नहीं है। एंड लास्ट वन सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। व्हाट इज द एंट्री फॉर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन? बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली ये बिल का हुआ क्या है? रिटेन हुआ है। These bills were accepted by Vishal. One important point. Suppose if these bills were accepted by Vishal on 3rd, तो एंट्री कौन से डेट को आएगा? 3rd को आएगा। बिल ड्रॉ करने के दिन पे नो एंट्री होता है। बिल ड्रॉ करने के दिन पे नो एंट्री होता है। एंट्री कौन से दिन को होता है? एक्सेप्टेंस। पॉइंट नंबर 2, ड्यू डेट कौन से डेट से कैलकुलेट करने का? आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट, ये दो पॉसिबिलिटी है। कैन यू टेल मी व्हाट इज आफ्टर डेट? द डेट फ्रॉम विच द बिल इज ड्रॉन। ओके, आफ्टर साइट मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। कुछ नहीं बोला रहेगा तो नो, इट इज नॉट आफ्टर साइट, आफ्टर डेट, इट इज फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। ठीक है, सो फर्स्ट बिल इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, वाइल सेकेंड बिल इज फॉर, चलो ड्यू डेट कैलकुलेट करके बताओ। फर्स्ट बिल का 4th मार्च, सेकेंड बिल का 4th ऑफ अप्रैल। अच्छा, ड्यू डेट में भी कुछ तो था, इफ इट इज अ पब्लिक हॉलीडे और इफ इट इज अ संडे देन प्रीसीडिंग वर्किंग डे, प्रीवियस। ओके, इफ इट इज अ इमरजेंसी हॉलीडे, emergency will be immediately following working day. It is very common sense कि संडे या पब्लिक हॉलीडे हमको एडवांस में पता होता है, इसके लिए प्रीसीडिंग डे लेते हैं। लेकिन इमरजेंसी हॉलीडे हमको बता के नहीं आता है, सडनली बोलेगा कल छुट्टी है, अभी पता चला कल ड्यू डेट है, तो प्रीसीडिंग डे तो हो नहीं सकता है, तो इट इज फॉलोइंग वर्किंग डे। ठीक है, एनीवेज ये सब नहीं है। 4th मार्च को क्या हुआ है? विशाल हैज accepted or rather requested Akshay to renew the first bill. What will happen if you want to renew the first bill? पहले फर्स्ट बिल को क्या करना पड़ेगा? कैंसल करना पड़ेगा। तो उसके लिए किसका एंट्री पास करना पड़ेगा? डिसऑनर। डिसऑनर भी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, के ट्रीटमेंट क्या है। सो हाउ मेनी ट्रीटमेंट्स? फर्स्ट क्या है? रिटेन बिल। डिसऑनर का एंट्री बोलो। एक चीज कॉमन है, डिसऑनर पे ड्रॉवर के बुक्स में हमेशा कौन डेबिट होगा? ड्रॉवी। ओके, सो विच अकाउंट डेबिट? नहीं, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। पहले चारों केस रिवाइज करो। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। चलो फर्स्ट केस में व्हाट इज द एंट्री फॉर डिसऑनर इफ नोटिंग चार्जेस आर पेड? फर्स्ट केस में हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? ड्रॉवर। सेकंड केस में हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? बैंक। थर्ड केस में हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? एंडोर्सी और क्रेडिटर। एंड फोर्थ केस में ड्रॉवर ही है, बट ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉवर बिल किसके पोजेशन में? बट हु इज द ओनर ऑफ द बिल? वी मतलब ड्रॉवर। सो बोलो फर्स्ट में एंट्री बोलो क्या आएगा? सी ऑल द केसेस में डिसऑनर में हमेशा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ड्रॉवर के ड्रॉवी। ऑब्वियसली ड्रॉवर के बुक्स में हम लोग तो ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट होगा। फर्स्ट केस में विच आर द अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड? अरे नोटिंग चार्जेस इज इनकम फॉर होम? नोटरी पब्लिक। एक्सपेंस फॉर होम? ड्रॉवी। तो ड्रॉवर के लिए ना ही वो इनकम है ना ही वो एक्सपेंस है, लेकिन वो पे वो कर रहा है, तो बोलो फर्स्ट डिसऑनर का एंट्री, डिसऑनर ऑफ रिटेन्ड बिल अज्यूमिंग नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द ड्रॉवर। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू
कैश और बैंक अकाउंट, दिस इज द एंट्री विथ नोटिंग चार्जेस. ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन में नहीं है, बट हमारा पर्पस क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, चैप्टर रिवाइज करना है. तो आप लोग ने अभी 12th का एग्जाम दिया, यू शुड नो द बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्रीज. बोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन में हर एक आता ही है एग्जाम में, अभी लास्ट टाइम भी 10 मार्क का क्वेश्चन आया था. बोलो नेक्स्ट क्या आएगा? डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटेड बिल. व्हाट इज द एंट्री? ड्रॉवीस अकाउंट डेबिट. डिसऑनर पे सोचना ही नहीं है, इट इज हमेशा उसका किसका डेबिट? ड्रॉवीस अकाउंट डेबिट. क्रेडिट में सोचना है, क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को आप कौन से अमाउंट से क्रेडिट करोगे? बिल प्लस नोटिंग चार्जेस. ओके नेक्स्ट बोलो. एंडोर्सी. तो केस 2 एंड केस 3 मोर और लेस सिमिलर, वहां पे बैंक होता है, यहाँ पे एंडोर्सी और क्रेडिटर. अगेन बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस. और लास्ट केस में फर्स्ट और लास्ट केस सेम है, फर्स्ट केस और लास्ट केस सिमिलर है. लास्ट केस में आप कौन से अकाउंट को क्रेडिट करोगे? बिल फॉर कलेक्शन या बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 2, और एक अकाउंट क्रेडिट होगा नोटिंग चार्जेस के लिए, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक हमारे पॉकेट में से नोटिंग चार्जेस पे करेगा. बिकॉज हु इज द होल्डर ऑफ द बिल इन केस नंबर 4? ड्रॉवर. ये ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं कि होल्डर ऑफ द बिल इन केस ऑफ बिल फॉर कलेक्शन इज बैंक, तो इट इज फॉल्स. आपको ट्रू और फॉल्स विथ रीजन लिखना पड़ेगा. चलो ये सब ड्रॉवर के बुक्स में है. ड्रॉ वी के बुक्स में डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा? अज्यूमिंग नोटिंग चार्जेस आर पेड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. नोटिंग चार्जेस क्यों डेबिट हो रहा है? इट इज एक्सपेंस फॉर होम? ड्रॉवी. 2 ड्रॉवर्स अकाउंट. ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर का अकाउंट क्रेडिट होगा. बट राइट नाउ ड्रॉवी के बुक्स में नहीं है हम लोग. ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री आएगा? राइट नाउ हियर रिटेंड बिल इज डिसऑनर्ड. 4 मार्च में फर्स्ट बिल को रिन्यू किया है, तो रिन्यू पे 3 एंट्री पास होगा. नंबर 1 डिसऑनर. सो राइट ऑन मार्च 4. बोलो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ फर्स्ट बिल? विशाल्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. नंबर कौन सा? 1 अकाउंट. विशाल्स अकाउंट डेबिट 16,000 टू बिल रिसीवेबल. नंबर 1 अकाउंट. विशाल्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. आई थिंक आई फॉरगॉट नरेशन फॉर फर्स्ट वन. विथ नरेशन हमको लिखना है. ठीक है, अभी सेकेंड वाले का नरेशन लिखो. बीइंग फर्स्ट बिल डिसऑनर्ड. तुम अगर डिटेल में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग विशाल्स एक्सेप्टेंस फॉर फर्स्ट बिल डिसऑनर्ड. उसके भी आगे लिखना है तो लिख सकते हो ड्यू टू रिन्यूअल ऑफ बिल. जितना एग्जाम में टाइम है उतना बकवास आप कर सकते हो. सी नरेशन दिखना मांगता है, कोई तुम्हारा बैठ के नरेशन पढ़ेगा नहीं, बट नरेशन दिखना मांगता है. दिखना मांगता है उसका मतलब ये भी नहीं है कि बीइंग बिल डिसऑनर्ड इतना भी लिखा तो भी चलेगा. बिलीव मी, इंस्टीट्यूट का अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो नरेशन में ऐसा कोई डिटेल नहीं लिखते हैं बीइंग बिल डिसऑनर्ड या बीइंग फर्स्ट बिल डिसऑनर्ड, मोर देन सफिशिएंट. बट नरेशन दिखना मांगता है. चलो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री दैट वी विल पास ऑन रिन्यूअल? इंटरेस्ट का एंट्री. इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हमेशा पास करने का एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है? 15% विल बी कैलकुलेटेड ऑन विच अमाउंट? नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा हूं, जनरली पूछ रहा हूं विच अमाउंट पे करने का. तो ऑलवेज ऑन टोटल अमाउंट, और इज इट ऑन अमाउंट पेड, और इज इट ऑन अमाउंट विच इज गोइंग टू बी पेड लेटर? जो बैलेंस मतलब जितना पैसा वो नहीं दे रहा है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. बट यहाँ पे ही इज नॉट पेइंग एनीथिंग, ही इज रिन्यूइंग द एंटायर ओल्ड बिल. तो बोलो क्या एंट्री आए, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट कितना कैलकुलेट करोगे? 15% ऑफ विच अमाउंट? 16,000. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 months. सो कैलकुलेट करो 15% इंटू 16,000 इंटू 2/12. बोलो कितना आया? 400. ओके. So we are in the books of drawer. Can you tell me what is the entry for interest? What is interest for drawer? Income. So interest is receivable. Bolo, what is the entry? Vishal's account debit to interest account 400. Vishal's account debit to interest account 400.
अच्छा, नाउ बीइंग interest receivable from Vishal on remaining amount at the rate of 15% per annum for 2 months. ये सब अभी तक कौन से बिल का स्टोरी चल रहा है? फर्स्ट बिल का. डू यू रिकलेक्ट? फर्स्ट बिल का ड्यू डेट भी 4 मार्च ही था, मार्च 4. दूसरा एंट्री भी मार्च 4 को ही आएगा. तीसरा एंट्री, विशाल इज गोइंग टू एक्सेप्ट न्यू बिल. अब इसको हम बिल रिसेबल नंबर 3 बुलाएंगे. न्यू बिल का अमाउंट कितना होगा? ओके, व्हाट इज द एंट्री? बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट. bills receivable number 3 account debit. Bills receivable number 3 account debit 16,400 to Vishal's account 16,400, being Vishal's acceptance for new bill along with interest received, being Vishal's acceptance for new bill along with interest received. Okay, can you recollect and tell me second bill का ड्यू डेट क्या था? देखो, फर्स्ट बिल का स्टोरी खत्म हो गया. अभी फर्स्ट बिल की जगह पे अभी हमारे पास थर्ड बिल आ गया, न्यू बिल. सो फर्स्ट बिल इज ओवर. व्हाट वाज द सेकंड बिल का ड्यू डेट? अप्रैल 4. अच्छा, बिफोर दैट व्हाट हैज हैपेंड? इनफैक्ट ऑन 25 मार्च. तो इसका एंट्री 25 मार्च को आएगा. 25 मार्च को क्या हुआ है? रिटायरमेंट ऑफ बिल. रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब क्या? ड्रॉवी इज मेकिंग द पेमेंट ऑफ द बिल before the due date of the bill. Okay, what is the entry for retirement in books of drawer? Bank account debit. Okay, how much is the amount of new bill? Sorry, amount of second bill? 25,000. 25,000 में से कितना दे रहा है वो? 24,750. So bank account debit 24,750. For this discount, what is the word that we will use? Rebate account debit. देखो, आपको डिस्काउंट लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन रीबेट स्लैश डिस्काउंट लिखने का, रीबेट तो कंपल्सरी लिखना ही मांगता है. रीबेट अकाउंट डेबिट 250 टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट. टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट. टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट. चलो, स्टोरी ऑफ सेकेंड बिल ऑल्सो खत्म हो गया. नाउ यहां पे लिखा है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल. व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ दैट रिन्यूड बिल? 16,400. Vishal became insolvent and only 50 paise in a rupee could be recovered from his asset. The moment Drawi becomes insolvent, तो immediately किसका एंट्री पास करने का? डायरेक्ट बैड डेट्स का पास करने का, डिसऑनर का पहले पास करेंगे. सो before the due date of the renewed bill, when was the renewed bill drawn? 4th March. वो कितने मंथ्स के लिए था? 2 months. तो इसका एंट्री आप ड्यू डेट को करोगे कि डेट नहीं लिखोगे? एग्जाम में क्या करोगे? लिखा है ना इधर बिफोर द ड्यू डेट. तो दोनों ऑप्शन है, आप ड्यू डेट भी लिख सकते हो या फिर आप डेट नहीं लिख सकते हो. वी डोंट नो द डेट, बिफोर द ड्यू डेट लिखा है. सो व्हाट विल द एंट्री फॉर डिसऑनर वी विल पास? दिस इज ऑल्सो रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड. व्हाट इज द एंट्री फॉर रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड? विशाल्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट. being acceptance for third bill dishonored due to insolvency of Vishal. इसके पहले वाले का एंट्री being Vishal's acceptance for second bill retired before the due date. इसके पहले वाले का नरेशन being Vishal's acceptance for
second bill retired before the due date. Now latest journal entry, Vishal's account debit to bills receivable number 2 account. Sorry, bills receivable number 3 account. Vishal's account debit to bills receivable number 3 account. Being Vishal's acceptance for the renewed bill dishonored due to insolvency of Vishal. Being Vishal's acceptance for the renewed bill dishonored due to insolvency of Vishal. चलो लास्ट वाले एंट्री में कितना पैसा मिल रहा है हम लोग को? हाउ मच इज द मनी दैट वी गॉट? 50 पैसे, दैट इज 50%. ओके, तो बोलो क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 8,200. फिर कौन सा? डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट. क्यों डेफिशिएंसी आता ना? ठीक है, तुमने अभी भी 12th का एग्जाम दिया, भूल गया मैं. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना? 8,200. 2 Vishal's account 16,200. Being you can write this only, being 50 paise in a rupee recovered from Vishal's estate. Being 50 paise in a rupee recovered from Vishal's estate. See, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे क्वेश्चन आता है, आई पर्सनली फील इट इज वेरी स्कोरिंग. You can lose marks only if you do silly mistake. मतलब ऐसा pathetic mistake किया ना तो ही इसमें मार्क्स जा सकता है. बाकी मेरे हिसाब से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में you cannot lose mark. Just before I proceed, आज मैंने आपके ग्रुप पे 2-3 फाइल्स भेजा है. In case you have downloaded. अच्छा, now first of all please listen. ये जो क्वेश्चंस का मैंने सोल्यूशन भेजा है, I think bills of exchange was there in your volume 3. I don't know whether volume 3 किसी के पास है. अगर आपके पास है तो आप ओपन कर सकते हो. So volume 3 में जो भी ट्राई और सेल्फ के क्वेश्चन नंबर्स हैं उसके मैंने सोल्यूशंस यहाँ पे भेजे हैं. So according to me खाली 3 ही क्वेश्चन थे. That is question number 6. अच्छा, one more thing, मैंने जो ट्राई और सेल्फ के क्वेश्चन भेजे हैं that is only फाउंडेशन के. बाकी के जो ट्राई और सेल्फ हैं वो 12th स्टैंडर्ड के ट्राई और सेल्फ है. अच्छा, उसमें से अगर आपको किसी को क्वेश्चन उसका सोल्यूशन चाहिए तो वो मैं ऑन रिक्वेस्ट भेज सकता हूं. अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर डोंट इग्नोर 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस, क्योंकि कभी कभी वो लोग 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन भी एज इट इज फाउंडेशन में पूछ सकते हैं. ऐसा हुआ भी है. सो इवन इफ इट इज 12th स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर आई विल टॉक चैप्टर स्पेसिफिक. So right now I am talking about bills of exchange. Bills of exchange chapter was common for 12th standard and foundation. Not actually speaking 12th standard में bills of exchange में ज़्यादा variety है questions में. So don't ignore volume 3 के questions. लेकिन मैंने जो आपको solutions भेजे हैं वो सिर्फ foundation के try और self के हैं. That does not mean कि तुम 12th standard के foundation 12th standard के try और self ignore करो. इन केस अभी कोई से फॉर एग्जाम्पल आपको ट्राई सेल्फ का क्वेश्चन चाहिए तो यू टेल मी, आई विल पोस्ट इट और आई विल सेंड इट. तो मैंने क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 29 एंड क्वेश्चन नंबर 32 ये 3 क्वेश्चन के भेजे. दिस इज स्पेसिफिकली फाउंडेशन क्वेश्चन, मतलब वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है. वेदर इट इज आरटीपी, वेदर इट इज पास्ट एग्जाम पेपर, वेदर इट इज स्टडी मटेरियल जिसको हम लोग ने टेक्स्ट बुक में डाला है, तो कहीं ना कहीं वो रहेंगे. उसके हिसाब से मैंने आपको सोल्यूशन भेजा है. दैट इज पॉइंट नंबर 1. फिर मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाले हैं. दिस इज ऑल्सो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन. सो उसके क्वेश्चंस हैं और उसी के नीचे उसके सोल्यूशन भी हैं. दैट इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2. सो आई थिंक दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट. ऑफ कोर्स हमारा अकोमोडेशन बिल बाकी है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस
अब अभी क्या होना चाहिए मालूम है, आज के दिन में व्हेन यू गो होम यू शुड कंप्लीट बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, मैक्सिमम 3 आवर्स, कहीं पे भी लिख के रखो, चाहिए तो 3 घंटे के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर तुम्हारा हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 4 आवर्स, 2 घंटा ट्रेड बिल, 2 घंटा अकोमोडेशन बिल, मतलब खत्म हो जाना चाहिए। मतलब अभी आप सीधा बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब रिवाइज करोगे, एग्जाम के दिन पे। अभी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिवाइज कर रहे हो, उसका मतलब आप हाई लेवल का टाइम पास कर रहे हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज टुडे इटसेल्फ इट शुड गेट कंप्लीटेड इन मैक्सिमम 4, मतलब 4 के ऊपर 1 मिनट नहीं देना चाहिए। शुड बी सो डिसिप्लिन कि 1 बजे क्लास छूटा, घर गया, खाना खाया, चाहिए तो आधा घंटा 1 घंटा सो जाओ, स्टार्ट एट 3 o'clock 7 o'clock बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुड बी कंप्लीटेड। फोन उठाया ने आईपीएल देखा, आईपीएल इज अटर वेस्ट ऑफ योर टाइम, लाइफ एंड करियर। अगर आप आईपीएल देख रहे हो, इट इज एंड टू योर सीए फाउंडेशन May 25 एग्जाम। आईपीएल इज अ, मैं क्या बोलना चाहता हूं, इज अ डिजीज फॉर यू इफ यू आर फॉलोइंग आईपीएल। आप मैच का स्कोर भी देख रहे हो ना, तो ये आपके लिए हाई लेवल का डेंजरस सिचुएशन है। मतलब आप स्टडी को सैक्रिफाइस करके अगर आप वो कर रहे हो, देन हाँ, अगर आपको 3 घंटा पूरा मैच देखना है तो सामने कॉम्पेंसेट करो। मतलब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब अभी सपोज फॉर एग्जांपल किसी को आदत रहेगा मैं टीवी देखते देखते भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर सकता हूँ, तो करो, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट आज के दिन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके सोना है, दैट शुड बी योर टारगेट। इनफैक्ट मेरा डेप्रिसिएशन भी चालू हो जाएगा, यू कैन स्टडी फॉर 1 more hour, बट आई थिंक देयर इज अनदर सब्जेक्ट ऑल्सो। अगेन सेम थिंग अप्लाइज फॉर लॉ। आई डोंट नो व्हाट लॉ का टीचर हैज इंस्ट्रक्टेड यू, पर मेरे लिए अगर आज 2.5 घंटे का लेक्चर हुआ है ना, तो जो 2.5 घंटा सर ने पढ़ाया वो आज का जाके 2.5 घंटा खत्म करना है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इट इज ऑलरेडी 25th मार्च, 25 मार्च से लेके 15 मई तुम्हारा एग्जाम ऑलमोस्ट 15 मई या 12 मई को चालू हो जाएगा। सो यू डोंट हैव मोर देन 40 or 45 days। सो यू कैनॉट अफोर्ड कि अभी मैं पीछे बैठ के रिवीजन करेगा। अभी तुम्हारा रिवीजन चालू हो गया, आई थिंक योर सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड। मैं बाहर हूं, अच्छा, मुझे इकोनॉमिक्स का स्टेटस नहीं पता है, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको जो चैप्टर रिवाइज कर रहा हूं उसी दिन वो चैप्टर में आवर्स भी दे दूंगा, उतने आवर्स में वो चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। In fact, we are spending 2 hours on bills of exchange. You spend 3 hours maximum, more than enough. जो भी डाउट रहेगा आज ही के दिन मैं अवेलेबल रहूँगा आफ्टर 5:30। आई डोंट हैव लेक्चर स्ट्रेट, कल सुबह 10 बजे मेरा लेक्चर है, तो तुम्हारे इसके बीच में तुमको जो भी सोल्यूशन एक्सेट्रा चाहिए वो मैं भेज दूंगा। सो यू शुड कंप्लीट ऑन रियल टाइम बेसिस। तुम्हारा रियल टाइम बेसिस पे पढ़ाई चालू होना चाहिए। दैट डजंट मीन ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में अभी आए नहीं तुम्हारे पास। ये जो 30 जो जितने भी आवर्स हम लोग अकाउंट्स का रिवीजन कर रहे हैं, उतने आवर्स में तुम्हारा भी रिवीजन सब्जेक्ट का हो जाना चाहिए। और मैंने क्वेश्चन 1 चालू किया डज नॉट मीन मैंने सिर्फ क्वेश्चन 1 में जो है वो पढ़ा है, पूरा चैप्टर का जर्नल एंट्रीज पे रिवाइज कर रहा है। सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर क्वेश्चन 2 इज योर होमवर्क। अभी चलो होमवर्क भी दे रहा हूं, तो ये आज ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। टुडे ओनली आई विल पोस्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2, बट उसके लिए पहले तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। राइट नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 विच इज ऑन। पहले आप क्वेश्चन रीड करो और फॉर्मेट डिसाइड करो कि फॉर्मेट क्या करेंगे। बिल कैसे पता चलेगा क्वेश्चन 3 में कि इट इज ऑन अकोमोडेशन बिल। इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन that the bill has been drawn for mutual accommodation. It is a very rare scenario that they will ask you in the books of both the parties. So यहाँ पे आपको both the parties में journal entries पूछा है. So I think we can prepare journal for maybe 1.5 page for both the parties. And I have always told you कि किसी भी एक के बुक्स में लेजर अकाउंट बनाने का, अकोमोडेशन बिल में दिस इज कंपल्सरी, दो इन रफ बट यू हैव टू प्रिपेयर। एंड सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज अकोमोडेशन बिल में वी शुड नॉट राइट ड्रॉवर और ड्रॉवी।
because there is no debtor creditor relationship between the two parties. Chalo, now first in the books of Lata, that is first party, and second in the books of Pallavi, second party. 1.5 page journal should be sufficient. दोनों के बुक्स में initial entries in case of accommodation bill are more or less same in every question. ऐसा क्वेश्चन हमने पास्ट में भी किया हुआ है. इट इज नॉट दैट वी आर डूइंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम. चलो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. बी रेडी विद द फॉर्मेट. इफ द फॉर्मेट इज रेडी, लेट अस रीड द फर्स्ट लाइन. डेट नहीं है तो नंबर्स डालते जाने का 1 2 3 4 अकॉर्डिंगली. आई एम रीडिंग द फर्स्ट वन. Lata draws a bill for rupees 40,000 and Pallavi accepts the same. So normal bills of exchange transaction. अच्छा, इसके पहले कोई ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा लोग के बीच में? क्यों नहीं हुआ रहेगा? Because there is no debtor creditor relationship. There is no transaction of purchase sale in accommodation bill. चलो write down. What is the journal entering books of Lata that you will pass? यहाँ पे ड्रॉवर कौन है? Who is drawing the bill? Lata. So what is the entry? Bills receivable account debit to bills receivable account debit 40,000 to Pallavi's account. Bills receivable account debit to Pallavi's account 40,000. Okay, simultaneously go to Pallavi's account. What is the entry will pass in books of Pallavi? Lata's account debit to bills payable account. So Lata's account debit to bills payable account. Pallavi के बुक्स में तुमने लता का अकाउंट बनाया रहेगा, उसमें जाओ. Okay, now listen very carefully. अकोमोडेशन बिल में विल यू राइट ओपनिंग बैलेंस? नो. लेकिन यही अगर हम क्वेश्चन 1 में अक्षय के बुक्स में विशाल का अकाउंट बनाते तो उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखने का कि नहीं लिखने का? लिखने का. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ट्रेड एंड अकोमोडेशन बिल में. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. बोलो, अकोमोडेशन बिल में व्हाट इज गोइंग टू बी ऑलवेज द ट्रीटमेंट ऑफ द बिल? एक मिनट नरेशन लिख लेते हैं. लता के बुक्स में नरेशन लिखो. बीइंग पल्लवीज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन. पल्लवीज एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन. एंड वहां पे लिखो being our acceptance given to Lata for mutual accommodation. Chalo, what is going to happen in case of accommodation bill? Accommodation bill का ट्रीटमेंट क्या होता है? हमेशा डिस्काउंट ही होता है. सो वी विल पास द एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. किसके बुक्स में? उसके लिए पहले आप आगे पढ़ो क्वेश्चन. लता डिस्काउंट्स द बिल फॉर 39,800. सो लता इज डिस्काउंटिंग द बिल. हाउ मच इज द डिस्काउंट ऑफ दिस बिल? 200. तो लता के बुक्स में क्या एंट्री आएगा डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल का? बैंक अकाउंट डेबिट 39,800. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 to bills receivable account 40,000.
बैंक अकाउंट डेबिट 39,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000 being accommodation bill discounted with the bank, being accommodation bill discounted with the bank. What is the entry for this in books of Pallavi? No entry, because यहाँ पे transaction is between Lata and the bank. Okay, now what is going to happen is who will remit the money to whom? Lata is remitting 1/4 of the proceeds to Pallavi. पहले एंट्री बाद में अमाउंट. चलो लता के बुक्स में एंट्री नंबर 3, Lata is remitting the amount to Pallavi. What is the entry Lata will pass? Pallavi's account debit. पहले एंट्री पास कर लो. Pallavi's account debit to Pallavi's account debit to bank account. Is this all? No. थोड़ा डिस्काउंट किसको बेयर करना पड़ेगा? पल्लवी को भी बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज इवन शी इज यूजिंग द मनी. सो बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, पल्लवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. ओके, पल्लवीज अकाउंट कितने से डेबिट होगा? अगर मुझे एक ब्रैकेट बनाना है, व्हाट विल बी द ब्रैकेट फॉर पल्लवीज अकाउंट? 40,000 इंटू 1/4. करेक्ट. इसके बाजू में ब्रैकेट बनाओ. $40,000 इंटू 1/4. लाइकवाइज टू बैंक अकाउंट के बाजू में ब्रैकेट बनाओ. व्हाट विल बी द ब्रैकेट बैंक अकाउंट के बाजू में? 39,800 को हम लोग प्रोसीड्स बोलते हैं. प्रोसीड्स, उसका 1/4 वॉज शेयर्ड विथ और रादर रेमिटेड टू पल्लवी. एंड टोटल डिस्काउंट इज 200, उसका 1/4. सो अमाउंट्स बोलो. 10,000, 99 and 50. What about remaining 3/4? Who is using the remaining 3/4 amount? Okay, so being 1/3 of the proceeds, sorry, 1/4 of the proceeds remitted to Pallavi. Being 1/4 proceeds remitted to Pallavi. चलो इसका एंट्री पल्लवी के बुक्स में क्या आएगा? व्हाट इज एंट्री इन बुक्स ऑफ पल्लवी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू लता's अकाउंट. सी नाउ, नॉर्मली अगर अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन आता है तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन. बट आइडियली अकोमोडेशन बिल में क्या होता है? लिसन केयरफुली. फर्स्ट किसने बिल ड्रॉ किया? ऑन होम. ओके, हाउ मच वाज द बिल अमाउंट? 40,000. व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ दिस 40,000? सी, नो डाउट 40,000 में बैंक से आप डिस्काउंट करवाओगे. द बिल वॉज ड्रॉन, बिल वॉज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? वो नहीं दिया हम लोग को. लता ड्रॉस अ बिल. दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, वेरी वियर्ड क्वेश्चन. बिल का ड्यूरेशन एक्सेट्रा नहीं दिया है. बट से फॉर एग्जांपल फर्स्ट बिल वॉज फॉर 3 months, तो 3 महीने पहले अगर आप बैंक के पास डिस्काउंट करवाओगे तो बैंक आपको पूरा पैसा नहीं देगा. बट डोंट थिंक
सी यू हैव टू थिंक ऑन टाइमलाइन. पहले आप सोचो आज क्या हो रहा है. टुडे बिल इज बीइंग ड्रॉन. टुडे बिल ड्रॉ होता है, टुडे बिल एक्सेप्ट हो रहा है, टुडे बिल डिस्काउंट हो रहा है. 40,000 का बिल है, बैंक आपको 3 महीने पहले पैसा दे रहा है, बैंक विल डिडक्ट इंटरेस्ट एंड गिव यू. भले आप उसको डिस्काउंट का नाम दे दो, बट अल्टीमेटली बैंक जो डिडक्ट कर रहा है वो है क्या? इट इज इंटरेस्ट. इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन बैंक ने उतना पैसा डिडक्ट किया. फिर आप ये मत सोचो, ऑब्वियसली आपको पैसा मिला है 39,800, बट यू थिंक व्हाट विल हैपन ऑन द ड्यू डेट. ऑन द ड्यू डेट हु इज द ड्रॉवी ऑफ दिस बिल? Pallavi is the drawee of this bill. Will Pallavi honor this bill? Will Pallavi honor this bill? पहले मेरे को बताओ 40,000 का ब्रेकअप क्या है? 40,000 को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 3/4 एंड 1/4. How much amount Lata has used? 30,000. How much amount Pallavi has used? 10,000. So Pallavi has used only 10,000. Lata has used 30,000. अब मुझे ये बताओ, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल, यू प्लीज थिंक दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल. आप पल्लवी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो मैं आपको, मेरा क्वेश्चन आपको समझेगा. विल पल्लवी ऑनर दिस बिल? हु इज होल्डर ऑफ दिस बिल? अरे तुम लोग स्टोरी में हो कि घूम गए हो? स्टोरी में हो रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. हु इज द होल्डर ऑफ दिस बिल? बैंक. ऑन द ड्यू डेट बैंक किसके पास जाएगा? तो मेरा क्वेश्चन इज प्लेन एंड सिंपल. टुडे ड्यू डेट है, ड्यू डेट के दिन सबसे पहले बैंक पल्लवी के पास से पैसा कितना मांगेगा? पूरा 40,000. ओके. सेकंड क्वेश्चन, विल पल्लवी पे फुल 40,000? नो. बिफोर द ड्यू डेट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन दैट शुड टेक प्लेस इन अकोमोडेशन बिल. एंड व्हाट इज दैट ट्रांजैक्शन? हु हैज टू रेमिट बैलेंस अमाउंट टू होम? लता हैज टू रेमिट बैलेंस अमाउंट टू पल्लवी. उसके बिना पल्लवी ऑनर नहीं करेगी. अच्छा, ट्रेड बिल में विल पल्लवी ऑनर द बिल? यस, बिकॉज पल्लवी इज ऑब्लिगेटेड टू पे 40,000 और ऑनर 40,000. बट यहां पे पल्लवी इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू पे एंटायर 40,000. पल्लवी खुद का शेयर देगी 10,000, बट रिमेनिंग अमाउंट हु हैज टू रेमिट टू होम? लता हैज टू रेमिट रिमेनिंग अमाउंट टू पल्लवी. अब वो कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, बट कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है. तो हमको कैसे पता चलेगा? बिकॉज 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, अदरवाइज अकोमोडेशन बिल का आप 10 मार्क का क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हो. अगर आपको 10 मार्क का क्वेश्चन बनाना है तो दे विल नेवर से दैट लता हैज रेमिटेड हर अमाउंट. लता डिड नॉट रेमिट हर अमाउंट. दैट इज वाई आगे क्या हो रहा है पढ़ो. नाउ इट इज हु ड्रॉइंग बिल ऑन होम? Draws another bill on Lata for rupees how much? 50,000. So now who becomes the drawer? Pallavi. So what is the entry you will pass in books of Pallavi? So write down bills receivable account debit to Lata's account. Bills receivable account debit to Lata's account. 50,000. ये लास्ट दोनों जर्नल एंट्रीज लता के अकाउंट में पोस्ट करो. लास्ट 2 जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ पल्लवी दैट यू हैव पास्ड, पोस्ट इट इन बुक्स ऑफ लता, सॉरी इन लता's अकाउंट. नीचे लता के अकाउंट में, पल्लवी के बुक्स में डिड यू ओपन लता's अकाउंट? ओके. सो उसमें साइमल्टेनियसली पोस्टिंग करते जाओ. चलो. नाउ लता हैज एक्सेप्टेड दिस 50,000 का बिल. गो टू बुक्स ऑफ लता एंड टेल मी लता के बुक्स में व्हाट इज द एंट्री फॉर एक्सेप्टिंग दिस बिल ऑफ 50,000? पल्लवी's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. लता के बुक्स में जाओ,
Pallavi's account debit to bills payable account. This time Pallavi has drawn bill on Lata for rupees 50,000. So now Pallavi is the drawer and Lata is the drawee. चलो नए बिल को भी ये लोग क्या कर रहे हैं, यू कैन रीड फर्दर. द सेकेंड बिल इज डिस्काउंटेड फॉर 49,000. हु मस्ट हैव डिस्काउंटेड दिस सेकेंड बिल? तो गो टू बुक्स ऑफ पल्लवी. बताओ पल्लवी के बुक्स में क्या एंट्री आएगा? व्हाट इज एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग द बिल? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट 49,000 जो सेकेंड बिल है उसका डिस्काउंट इज 1,000. सो बैंक अकाउंट डेबिट 49,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000. व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस इन बुक्स ऑफ लता? ये जो नया बिल डिस्काउंट करवाया उसका लता के बुक्स में क्या एंट्री आएगा? नो एंट्री. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. कैन यू टेल मी कि जो नया बिल डिस्काउंट करवाया है फॉर रुपीज 49,000, ये 49,000 से सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट बिल ऑनर होगा. कैन यू सी हियर एंड टेल मी फर्स्ट बिल का ड्रॉवी कौन है? पल्लवी. फर्स्ट बिल का ड्रॉवर कौन था? ओके, फर्स्ट बिल का होल्डर ऑफ द बिल कौन है? बैंक. सो हाउ मच अमाउंट विल बी पेड बाय whom टू whom फॉर ऑनरिंग द फर्स्ट बिल? पल्लवी विल पे हाउ मच? 40,000 टू बैंक. मतलब सिंपल लैंग्वेज में कैन वी से वी विल पास एंट्री फॉर ऑनर इन द बुक्स ऑफ पल्लवी. पल्लवी इज ड्रॉवी. सो ड्रॉवी के बुक्स में ऑनर का क्या एंट्री आएगा? दैट इज योर नेक्स्ट जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ पल्लवी. सो गो टू बुक्स ऑफ पल्लवी. बोलो व्हाट इज द एंट्री फॉर ऑनर? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. What will be the amount of this journal entry? 40,000. लिसन, ये कौन सा बिल ऑनर हो रहा है? फर्स्ट बिल. हु वॉज ड्रॉवर ऑफ द फर्स्ट बिल? ओके, विल लता पास एनी एंट्री फॉर दिस ऑनर? वाई नो? बिकॉज दिस इज ऑनर ऑफ विच बिल? डिस्काउंटेड बिल. ऑनर ऑफ डिस्काउंटेड बिल का ड्रॉवर के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आता है. चलो इधर तक स्टोरी समझ में आया? ओके, नाउ कैन यू टेल मी अब who is remitting the amount to whom? Pallavi is remitting a sum of rupees how much? To whom? Lata. So Pallavi के बुक्स में आ जाओ. पल्लवी के बुक्स में what is the entry for remittance? Lata's account debit. Please don't write amounts. Lata's account debit to bank account and to what? Discount account. मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए.
9,200 किसके सामने आएगा? $9,200 किसके सामने आएगा? बैंक अकाउंट के सामने आएगा. करेक्ट. नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि भाई डिस्काउंट कौन से रेशियो में शेयर होगा? विल इट बी दैट प्रीवियस रेशियो 3/4 एंड 1/4? नो. तो हमेशा नए बिल का रेशियो ढूंढने का. कैन यू टेल मी न्यू बिल का अमाउंट कितना था? बिल का अमाउंट कितना था? 50,000. हाउ मच वॉज डिस्काउंट? 1,000. Subtract करो 50,000 minus 1,000. How much you are getting? 49,000. Okay. Now see, please ये स्टेप याद रखो जो मैं बोल रहा हूं. सिंपल लैंग्वेज में मैं पूछ रहा हूं. वी आर कैलकुलेटिंग हाउ मच डिस्काउंट इज टू बी बोर्न बाय whom? लता. सो आप हमेशा क्या सोचोगे कि ये 49,000 में से लता ने कितना पैसा यूज किया है? तो बोलो ये 49,000 में से लता ने कितना पैसा यूज किया? सो आउट ऑफ दिस 49,000 हाउ मच अमाउंट वॉज यूज्ड बाय लता? दैट इज व्हाट वी हैव टू आंसर. तो पहले कितना पैसा यूज किया? 30,000. बिकॉज लता डिड नॉट रेमिट दैट 30,000, तो ये 30,000 वॉज यूज्ड बाय लता. एंड प्लस हाउ मच अमाउंट वॉज गिवन टू लता? 9,200. सो टोटल 39,200 वॉज यूज्ड बाय लता out of this 49,000. This is the most important part in accommodation bill. तो बाकी कितना पैसा बचता है? हाउ मच इज रिमेनिंग? 9,800. 9,800 was, you can say, used by Pallavi. So this is the ratio in which the discount will be shared by the two parties. यहां पे जो मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, दैट इज डिस्काउंट टू बी बोर्न बाय लता. दैट इज व्हाई आई एम नॉट रिड्यूसिंग दिस रेशियो. अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप कर सकते हो. आई थिंक इट इज 4:1. यू कैन चेक करो. इज इट 4:1? इवन इफ यू डोंट वांट टू रिड्यूस इट, आप ऐसे कर सकते हो. डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन है वो आएगा 1,000 इंटू 39,200 डिवाइडेड बाय 40,000. सॉरी 49,000. डिनोमिनेटर में 49,000. What is the amount that you are getting? Check करो. 800. तो यहां पे लता's अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,000. ये वाला एंट्री लता के अकाउंट में पोस्ट करो डेबिट साइड. लता's अकाउंट डेबिट. सो डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट 9,200 टू डिस्काउंट अकाउंट 800 बीइंग. इसके पहले वाले का नरेशन वाज बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड. दिस जर्नल एंट्री का नरेशन इज बीइंग
amount remitted to Lata. चलो गो टू बुक्स ऑफ लता, उसके बुक्स में भी ये रेमिटेंस का एंट्री आएगा. शी विल पास द एंट्री फॉर रिसीविंग द अमाउंट फ्रॉम पल्लवी. So what is the entry Lata will pass for receiving the amount from Pallavi? Bank account debit, discount account debit, bank account debit 9,200, discount account debit 800, to Pallavi's account 10,000. Being amount received from Pallavi, being amount received from Pallavi. Okay, now listen very very carefully. बोलो सेकंड बिल का ड्रॉ वी कौन है? सेकंड बिल का ड्रॉ वी. लता इज द ड्रॉ वी ऑफ द सेकंड बिल. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेकंड बिल? 50,000. हु इज होल्डर ऑफ सेकंड बिल? बैंक है. अब ड्यू डेट के दिन बैंक किसके पास जाने वाला है? लता के पास. उसके पहले क्या होना चाहिए? अकोमोडेशन बिल में व्हाट शुड हैपन? पल्लवी शुड रेमिट द अमाउंट. इज पल्लवी रेमिटिंग द अमाउंट? क्वेश्चन में नहीं दिया होगा. हाँ, तो एंड पर रेमिटेंस का एंट्री पास करोगे कि नहीं करोगे? हु इज सपोज टू रेमिट अमाउंट टू होम? हाँ, तो अभी केस 1 केस 2, यहां पे केस 2 है. व्हाट इज केस नंबर 1? केस नंबर 1 अगर ऐसा लिखा रहेगा सेकंड बिल इज ऑनर्ड, तो आप रेमिटेंस का एंट्री पास करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे. हु हैज रेमिटेड अमाउंट टू होम? पल्लवी रेमिट्स द अमाउंट टू हाउ मच? अरे लता का अकाउंट टैली करो ना यार. लता का अकाउंट टोटल करो कैलकुलेटर पे. टैली मतलब डोंट एक्चुअली टोटल इट. अज्यूमिंग आपने सब एंट्री पोस्ट किया. लता का अकाउंट क्लोज करके अमाउंट बताओ कितना है, डिफरेंस कितना है? सो हु विल रेमिट अमाउंट टू होम? पहले विच साइड इज कमिंग मोर? लता में कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट कैसे ज्यादा हो सकता है? क्रेडिट ज्यादा है. फिर से एक बार टोटल करके चेक करो. बोलो डिफरेंस कितना है? तो सिंपल लैंग्वेज में हु विल रेमिट होम? पल्लवी विल रेमिट टू लता. तो रेमिटेंस का एंट्री आएगा कि नहीं आएगा? अगर सेकंड बिल ऑनर्ड वो लोग ने लिखा है तो आएगा. लेकिन केस नंबर 2 यहां पे हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट? लता बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब लता इज नॉट गोइंग टू ऑनर द सेकंड बिल. देन व्हाई विल पल्लवी रेमिट द अमाउंट? अरे पल्लवी अगर रेमिट भी करेगी तो लता के पास तो खुद का पैसा नहीं है ना देने के लिए, बिकॉज शी हैज बिकम इंसॉल्वेंट. सो इज पल्लवी गोइंग टू रेमिट अमाउंट टू लता? नो. सो पहले तो इंसॉल्वेंसी हो गया, तो इंसॉल्वेंसी पे शी इज नॉट गोइंग टू ऑनर द सेकंड बिल. सो व्हाट विल बी द एंट्री दैट यू विल पास ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ लता? डिसऑनर का एंट्री पास करेंगे. तो चलो डिसऑनर का एंट्री पास करते हैं. नेक्स्ट वन, कम टू बुक्स ऑफ पल्लवी. पल्लवी के बुक्स में पहले हम डिसऑनर का एंट्री पास करेंगे. व्हाट इज दिस डिसऑनर ऑफ विच बिल? डिस्काउंटेड बिल. व्हाट इज द एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटेड बिल इन द बुक्स ऑफ पल्लवी? Lata's account debit to bank account. Lata's account debit to bank account. Lata's account debit
to bank account. बोलो how much is the amount that bank will deduct from Pallavi's account? बैंक तो पूरा 50,000 काट लेगा. लतास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000. इसको भी लता के अकाउंट में पोस्ट करो. चलो अभी लता के बुक्स में जाओ. हु वॉज ड्रॉवी फॉर द सेकेंड बिल? लता. सो व्हाट इज द एंट्री शी विल पास? दिस इज डिसऑनर ऑफ Lata's acceptance. Bills payable account debit to Pallavi's account. So write down bills payable account debit to Pallavi's account. Bills payable account debit to Pallavi's account. दोनों में नरेशन लिखो. यहां पे लिखो being our acceptance for accommodation bill dishonored. Being our acceptance, ये लता के बुक्स में नरेशन आएगा. Being our acceptance for accommodation bill dishonored. And पल्लवी के बुक्स में being Lata's acceptance for accommodation bill dishonored. और लास्ट जर्नल एंट्री के लिए गो टू लता's अकाउंट. उसको टोटल करके डिफरेंस फाइंड आउट करो. जो भी डिफरेंस है उसमें से हाउ मच इज लता पेइंग एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. क्वेश्चन में दिया है वो. लता इज पेइंग हाउ मच इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. चेक करो. आई थिंक डिफरेंस शुड बी 40,000. 40,000 ना. पहले आपने 10,000 किया था, अभी 50,000 का एंट्री डाला है. सो 40,000 का डिफरेंस आएगा. सो बोलो हु इज पेइंग टू हुम? पेइंग टू हाउ मच परसेंट? 60%. तो बोलो क्या एंट्री पास करेंगे पल्लवी के बुक्स में? बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट आई थिंक इट इज 24,000. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 16,000. to Lata's account. Bank account debit 24,000. Bad debts account debit to Lata's account being 60 पैसे in a rupee या whatever क्या दिया है. हाँ 60 पैसे in a rupee received from Lata as full and final settlement. फुल सेटिस्फैक्शन लिखो आप जो क्वेश्चन में दिया है वो. बोलो व्हाट इज द एंट्री इन बुक्स ऑफ लता? पल्लवी's अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यहां पे आप क्या लिखोगे? टू डेफिशिएंसी. देखो अभी अभी जो हमने सॉल्व किया ना, अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया ना अकोमोडेशन बिल पे तो एंट्री सब सेम रहेगा जो अभी हम लोग ने एंट्रीज पास किया. खाली अमाउंट चेंज होगा, मतलब डिस्काउंट का अमाउंट चेंज होगा. बाकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आप मुझे पूछोगे ना तो एंट्री सेम रहेगा. यहां पे आएगा बीइंग 60 पैसे इन अ रूपी पेड टू पल्लवी एज फाइनल सेटलमेंट. चलो मैंने एक जनवरी 25 का क्वेश्चन डिस्प्ले किया है. प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन. आपको क्या डिफरेंट फाइंड होता है ये क्वेश्चन में प्लीज मुझे बताओ. आज ही हम लोग ने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया. वो वाला क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन कंपेयर करो, क्या डिफरेंट आपको लग रहा है? ओके. क्वेश्चन 1 जो हम लोग ने सॉल्व किया और ये वाला एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, व्हाट इज अ डिफरेंट थिंग दैट यू कैन फाइंड इन बोथ दिस क्वेश्चन? वन ऑफ द तो डिस्काउंटिंग है. ओके. दोनों बिल रिन्यू किया है. उसमें एक बिल एटलीस्ट रिटायर हो रहा था बट सेकेंड बिल नहीं. सो वेरी सिमिलर क्वेश्चन वो लोग ने पूछा है फॉर 5 मार्क्स. कंसिस्टेंटली बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे दे आर आस्किंग क्वेश्चन. सितंबर का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इट वाज ऑन अकोमोडेशन बिल. सो लाइकवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट. अब जब चाहिए तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो. यू कैन सी हियर
कि तीनों लास्ट तीनों अटेम्प्ट का सजेस्टेड अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड, सॉल्व, ट्राई टू गेट द आंसर. चलो नाउ दैट इज एंड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आई थिंक मोर देन सफिशिएंट. क्वेश्चन 2 वाले क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किए हैं, नॉट ओनली इन 12th स्टैंडर्ड बट ऑल्सो एट फाउंडेशन. सो यू ट्राई दिस क्वेश्चंस विच विल बी गुड रिविजन फॉर योर जर्नल एंट्रीज. आज का जी सॉल्व करो, डोंट कीप इट टिल द एंड. दैट इज एंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. चलो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डेप्रिसिएशन. Before I start depreciation, now depreciation was not there in 12th standard. So depreciation 12th standard में नहीं था. Depreciation का जो भी आपके वॉल्यूम नंबर 4 में था, depreciation चैप्टर आपके वॉल्यूम 4 के टेक्स्ट बुक में था, इट वॉज चैप्टर नंबर 23 आई थिंक सो. सो आप चेक कर लो, वहां दैट चैप्टर का भी मैंने आपको ट्राई और सेल्फ का सोल्यूशंस भेजा है. ना उसके अंदर देयर वर ओनली 3 और मे बी 4 ट्राई और सेल्फ. क्वेश्चन 3 था तो उसका फुल फ्लेज सोल्यूशन मैंने भेजा है. नेक्स्ट आई हैव आल्सो सेंड क्वेश्चन नंबर 10 विच वाज अगेन ट्राई और सेल्फ. क्वेश्चन 22 का मैंने सिर्फ आंसर्स भेजा है, बट आई थिंक यू कैन डेफिनेटली मैनेज. क्वेश्चन 25 एंड क्वेश्चन 28, ये 4 क्वेश्चंस थे. सो देयर वर टोटल 28 क्वेश्चंस इन डेप्रिसिएशन एंड ऑल वर फाउंडेशन क्वेश्चंस ओनली. सो उसमें फाउंडेशन तुमको वहां से ही रेफर करना है, डेप्रिसिएशन चैप्टर. सो डेप्रिसिएशन चैप्टर यू कैन कीप टारगेट ऑफ टुमारो हमारे लेक्चर में डेप्रिसिएशन एंड मे बी इन्वेंट्री. मोस्टली इन्वेंट्री कंप्लीट नहीं होगा. सो डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री तुम लोग कल कंप्लीट कर लेना. टुमारो आई थिंक हमारा लेक्चर है. देखो एक बार चेक करो टाइम टेबल, क्योंकि मुझे और आपका टाइम टेबल मैच नहीं हो रहा है. एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है? हाँ तो वही टाइमिंग रहेगा 10 to 1:30. ठीक है, चलो एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 टुडे. आई थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर प्रिपेयरिंग मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years. सो राइट डाउन. चलो इन द बुक्स ऑफ जो भी है, इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी, अगेन डेप्रिसिएशन इज वन चैप्टर जिसपे कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आते हैं. इवन इट वाज आस्क्ड इन January 25 अटेम्प्ट, 10 marks. चलो बी फास्ट, वी वांट टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. मशीनरी अकाउंट प्रॉपर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट आएगा. डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, हेडिंग में मशीनरी अकाउंट, अकाउंट का फुल फॉर्म लिखने का. चलो let us start. You can see they have asked us to prepare machinery account for 4 years. You can read the first 2 lines and tell me which is the first year जिससे हम लोग स्टार्ट करेंगे. 15-16. So दोनों साइड डेट कॉलम में लिख दो 2015-16. both the sides date column write down 2015-16. Okay, now we will see that which are the transactions which are taking place in 2015-16. So आप check करो, in this table they have said she purchased the following machineries during 15-16 and 16-17. On 1/4/2015, 64,000. Is this falling in this year? 1/4/2015, is it falling in this year? Should I ask this third time? 1/4/2015 क्या ये साल में आता है? हाँ तो बोलो एंट्री क्या है परचेस करने का मशीनरी. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. राइट डाउन डेबिट साइड April 1. डेबिट साइड राइट डाउन April 1.
to bank account 64,000. चलो नेक्स्ट. इज वंस, अभी एक ही बार पूछूंगा, इज 1 जुलाई 2015 फॉलिंग इन दिस ईयर? तो क्या एंट्री पास करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 38,000 जुलाई 1. July 1 to bank account 38,000. इसी टेबल में 1/10/2015 is 1/10/2015 falling in this year? Yes. So again October 1 to bank account, October 1 to bank account, अमाउंट कॉलम में 80,000. रीड द क्वेश्चन फर्दर. इज द नेक्स्ट डेट फॉलोइंग इन दिस ईयर? व्हाट इज द डेट? 1/4/2016. इज दिस फॉलोइंग इन दिस ईयर? नो, नेक्स्ट ईयर में. चलो, तो अभी हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन. गो टू वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 1. Working note number 1, depreciation as on. Working note number 1, depreciation as on 31st March 2016. Depreciation as on 31st March 2016. There are 3 machineries. So we can give numbering to them. We can start with 1. Okay, now depreciation calculate करने के लिए you require 2 main things. What are the 2 main things? Percentage पहले तो check करो how much is the percentage of depreciation? 10%. Second, we require the method. First method or one of the method that you have or must have studied is straight line method, which is also called as original cost method, which is also called as fixed installment method. ये सब एक ही मेथड का नाम है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. ये मेथड में डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट ऑफ मशीनरीज? ओरिजिनल कॉस्ट. तो पहले मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? सो राइट डाउन. परसेंटेज इज 20%. Sorry, 10% per annum. So 10% into 64,000. Okay, here depreciation will be calculated for how many months? Into 12/12. Write it in such a way कि लास्ट में हम तीनों का टोटल कर सकें. फर्स्ट मशीनरी 6,400. चलो सेकेंड मशीनरी पे परसेंटेज विल रिमेन सेम. हाउ मच इज ओरिजिनल कॉस्ट? 38,000. ओके, इट वॉज परचेस्ड ऑन 1st July. सो हाउ मेनी मंथ्स का डेप्रिसिएशन? 12 इंटू 9/12. कैलकुलेट करो. 2850. And third machinery was purchased on 1st October. फर्स्ट अक्टूबर को मशीनरी परचेज किया, उसका ओरिजिनल कॉस्ट इज 80,000. इस पे मस्ट डेप्रिसिएशन विल बी फॉर हाउ मेनी मंथ्स?
1st October मतलब depreciation will be for 6 months. So into 6 by 12 बोलो कितना आता है 4000. ये तीनों का टोटल करो 13,250. चलो एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन बोलो. व्हाट इज द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. सो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड March 31, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 13,250. ओके, क्लोज दिस अकाउंट. क्रेडिट साइड पे March 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,68,750. 1,68,750. $168,750. Next year will be 16-17. Next year will be 16-17. उसमें डेबिट साइड April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट लाइन April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. $168,750. चलो नेक्स्ट ईयर चेक करो. इज देयर एनी अदर मशीनरी परचेस्ड? फर्स्ट 3 मशीनरी हम लोग ने परचेज किया है, उसका एंट्री हम लोग ने ऑलरेडी पास कर लिया है. नाउ वी गो फॉर M4, that is machinery 4. 1/4/2016. Is 1/4/2016 falling in this year? Okay, so लिखो. Again entry will be machinery account debit to bank account. So debit side April 1 to bank account. April 1 to bank account. Amount is 86,000. Okay, read further. March 31, 2017. Is 31 March 2017 falling in this year? लास्ट डेट पे लोग ने मशीनरी परचेज किया है 31 March 2017. सो डेबिट साइड March 17 टू बैंक अकाउंट. अमाउंट इज 1 lakh. Okay, then there is no other transaction. Go to working note. Working note number 2. Calculation or rather depreciation as on 31st March 2017. Working note number 2. Depreciation on 31st March 2017. एक मिनट. नाउ मशीन 1 पे डू वी हैव टू शो कैलकुलेशन अगेन और विल इट बी सेम? मशीन 1 पे विल इट बी सेम है?
एस, तो दो टाइम वेस्ट नहीं करने का, लिख देने का सेम एस अबाव, क्योंकि वी विल मशीन 1 पे विच वॉज 64,000, उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा 10%, इज सेम एस अबाव। फर्स्ट ईयर में हमने ऑलरेडी बता दिया है कैलकुलेशन। सेकेंड एंड थर्ड मशीनरी, उस पे यू हैव टू शो कैलकुलेशन अगेन, बिकॉज फर्स्ट ईयर में वी हैड कैलकुलेटेड ओनली फॉर 9 months एंड 6 months रिस्पेक्टिवली। सेकेंड ईयर में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। So it is 3,800, 8,000. चलो, करंट ईयर में वी हैव परचेज 2 मशीनरीज, विल यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन बोथ द मशीनरीज? तो कौन से मशीनरी पे नहीं आएगा? लास्ट वाले पे नहीं आएगा, बिकॉज इट वॉज परचेस्ड ऑन द लास्ट डेट। But it will be calculated on machinery which was purchased on first date, 86,000, that is machine 4. And since it was purchased on first date, full 12 months का आएगा। Okay, calculate करो and add this. बोलो, what is the total depreciation in second year? 26,800. डेप्रिसिएशन का है, एंट्री पोस्ट करो, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट साइड, March 31, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 26,800, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 26,800, अकाउंट को क्लोज करो। फाइंड आउट द डिफरेंस। बोलो, हाउ मच इज द डिफरेंस? 3,27,950, 3,27,950. Come to third year. Which is the third year? 17-18. So write down 2017-18. Opening balance लिखो, 2 balance brought down. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट था 327,950. चलो नेक्स्ट, रीड दिस पैराग्राफ बिलो दिस टेबल. मशीन परचेस्ड ऑन 1st April 2015 was burnt on 1st October 2017. So after how many months in the current year this machinery got burnt? 6 months. तो उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 3. राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 3. विच मशीन गॉट बर्न्ट? पहला वाला, तो लिखो स्क्रैप ऑफ मशीन 1 ऑन 1/10/2017. Scrap of machine 1 on 1/10/2017. We used to prepare our working note for sale या scrap, ऐसा एक वर्किंग नोट बनाते थे हम लोग. So ऐसे एक वर्किंग नोट बनाओ. We want 2 headings, particulars and rupees.
एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा तो ऐसा टेबल नहीं बनाया तो चलेगा, सीधा स्टार्ट कर देने का। अमाउंट सही होना चाहिए भाई, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। चलो राइट डाउन। ओरिजिनल कॉस्ट एस ऑन 1/4/2015, फर्स्ट मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 6,400। देखो अभी टाइम कैसे बचाने का, आप ऐसे लिख सकते हो, डेप्रीसिएशन को आप लेस करोगे। हम लोग क्या करते थे मालूम है, इन केस यू रिमेंबर, पहले फर्स्ट ईयर का डेप्री फिर उसका डब्ल्यूडी, पर ऐसा एग्जाम में टाइम कैसे बचाने का, आई एम नॉट सेइंग वो जो हमने किया वो गलत था, यहां पे इसको अंडरलाइन करने का। 2 years का डेप्रीसिएशन, विच 2 years का डेप्रीसिएशन वी हैव प्रोवाइडेड, 15, 16, 16, 17, ये 2 साल का डेप्रीसिएशन आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। दिस इज टू सेव टाइम इन एग्जाम। $64,000 माइनस ये दोनों सब्ट्रैक्ट करो, how much is difference you are getting, 51,200. This you can say is the WDV as on 1/4/2017, that is at the beginning of the current year. 1/4/2017 पे this is the WDV. Okay, कोई बताएगा that which are the 3, और अदर फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, विल यू प्रोवाइड करंट ईयर डेप्रिसिएशन, सो राइट डाउन लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 months, या करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट करंट ईयर डेप्रिसिएशन, you can write depreciation for 6 months. चलो 6 months का depreciation is 10%, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा है। देखो यहाँ पे WDV मेथड होता ना तो आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एवरी ईयर WDV पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, यू हैव टू मॉडिफाई और वर्किंग अकॉर्डिंगली। इज दिस 3,200, चलो माइनस करो, 51,000 माइनस 3,200, 48,000, दिस इज WDV एज ऑन 1/10/2017। WDV as on 1/10/2017, कितना है, 48,000। अच्छा इसमें कुछ मिला है क्या हम लोग को, क्या मिला है, सो राइट डाउन नेट स्क्रैप वैल्यू, इट इज नॉट सेलिंग प्राइस, हाँ, नेट स्क्रैप वैल्यू is 4,000, so difference 44,000, ये 44,000 का नाम रखो, लॉस बाय व्हाट, फायर।
लॉस बाय फायर. चलो आई थिंक वी शुड पुट नंबरिंग. अगर आपको याद रहेगा नंबर 1 2 3 डालते थे हम लोग. नंबर 1 आप किसको दोगे? करंट ईयर डेप्रिसिएशन को नंबर 1 आता था. नंबर 2 किसको डालोगे? नो. रियलाइजेबल वैल्यू कहां से आया? ये सब कौन सिखाया है? स्क्रैप वैल्यू. लॉस बाय फायर. नंबर 3. एक चीज मुझे पूछना है, पूछ रहा हूं. नहीं, करंटली मेरा नया फाउंडेशन का बैच चालू है, तो अभी मैंने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चालू किया है, गुडविल भी चालू किया है. तो उसका चाहिए तो मैं ग्रुप पे वीडियोस डालते जाऊं, बिकॉज दे आर ओनली फाउंडेशन वीडियोस. लेकिन इट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. बाकी के चैप्टर्स को टाइम लगेगा. ठीक है, चलो कम ऑन. इसका हम लोग 3 एंट्री हमको पोस्ट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट इज फॉर करंट ईयर डेप्रिसिएशन. ऑल दिस एंट्रीज विल बी पास्ड ऑन 1 अक्टूबर. सो डेप्रिसिएशन का एंट्री तो वही रहेगा. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. गो टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट साइड. October 1 machinery account credit side. October 1 buy depreciation account. 3,200. चलो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट जर्नल एंट्री किसका पास होगा? स्क्रैप वैल्यू का. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर रिसीविंग स्क्रैप वैल्यू? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. Again machinery account credit side. October 1 buy bank account 4,000. Next, what will be the journal entry for loss? Loss by fire of machinery account debit to machinery account. So machinery account credit side. October 1. Dates are October 1 only. October 1 by loss by fire of machinery account. By loss by fire of machinery account 44,000. Okay, let us read further. Is there any transaction in this year? Machinery purchased on 1st July 2015 was sold on 31st March 2019. कौन सा ईयर चालू है? 17-18. सो ये ईयर में नहीं है. चलो वर्किंग नोट नंबर 4. वर्किंग नोट नंबर 4 में डेप्रीसिएशन एस ऑन 31st March 2018. डेप्रीसिएशन एस ऑन 31st March 2018. Depreciation as on 31st March 2018. फर्स्ट वाला मशीनरी सोल्ड. सो फर्स्ट आप लिख सकते हो सोल्ड. सेकेंड का सेम एस अबव. सेम एस अबव मतलब सेम एस वर्किंग नोट 2. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों में आप लिख सकते हो सेम एस अबव. 3,800, 8,000 एंड 8,600. तुमको अकाउंट्स में अगर 80 के नीचे आया ना, वो बाद में बताऊंगा. हम लोग 1 साल से अकाउंट्स कर रहे हैं. वही चैप्टर अगेन एंड अगेन सेम चैप्टर्स कर रहे हैं हम लोग. मैथ्स में 100 से नीचे आना ही नहीं चाहिए तुमको. जिसको भी मैथ्स में 100 से नीचे आया. चलो पॉइंट नंबर 5. फिफ्थ मशीनरी वॉज परचेस्ड इन विच ईयर? जिसपे लास्ट ईयर तुमने डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं किया. ये 1 लाख वाला. बीच में तुम लोगों ने 12th का भी एग्जाम दिया, उसमें भी तुमने अकाउंट्स किया है. अकाउंट्स तो हम लोग
चलो इस सब का टोटल करो, गिव मी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टोटल 30,000, 30,400. दिस इज डेप्रिसिएशन ऑन 31st March 2018, जो अभी हम लोग अकाउंट बना रहे हैं. सो गो टू दैट अकाउंट. हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं खत्म करना है, चैप्टर 1, 2, 3 भी खत्म करना है. सो 4 नहीं 6 घंटा बैठना पड़ेगा तुमको. रात को सोने का नहीं फिर. ऑब्वियसली 1 महीना नहीं सोगे कुछ नहीं होएगा. बिलीव मी, नथिंग विल हैपन टू यू. कुछ नहीं होएगा, खाली दूसरा थोड़ा ड्राउजीनेस फील होएगा. सर ऐसा भारी लगेगा, ड्राउजी काला हो जाएगा. उसका भी इलाज है. 1 महीने बाद एग्जाम के बाद ब्यूटी पार्लर में बैठ जाना 12 घंटा, काकड़ी लगा देना, इधर एलोवेरा लगाना, बहुत सारे क्रीम आते हैं वो लगा लेना. और उससे भी नहीं गया तो मेकअप किट्स आर अवेलेबल, पोत देना इधर. कुछ नहीं होएगा, बिलीव मी, मैंने ट्राई किया है. मैं 1 महीना नहीं 6 महीना सिर्फ 4 घंटा सोता था. कुछ नहीं होता है 12 to 4 सोने का. नथिंग विल हैपन टू यू. 4 नहीं 5 बार 6 बार खाते हो, क्या डाउट है? 6 बार दिन में ठूसते हो, अच्छा खासा पेट भरा हुआ रहता है. नथिंग विल हैपन टू यू. अभी क्या हुआ? मेकअप तो प्लास्टिक सर्जरी, जो डिपेंड्स अपॉन योर बजट. अपने पास सब सोल्यूशन है. हाँ, तो फेयर एंड लवली का क्रीम आता है, या फिर मन में वो क्रिकेटर्स लोग सनस्क्रीन लगाते हैं ऐसा, वो लगा के घूमने का. नहीं, बस वो नीचे बैंड आता है वो लगा के घूमने का. कुछ नहीं होता है. सीए फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक मारेगा ना, कोई तुम्हारा रंग नहीं देखेगा. बैंक अकाउंट पूछेगा सब, पैसा कितना चाहिए, तो डिसाइड करो. और वो बैंक में पैसा आएगा ना तो किधर भी जाके ब्यूटी पार्लर में 25,000 का खर्चा कर सकते हैं. लड़के लोग भी जाते हैं बाय द वे. एक्चुअली आई एम नॉट जोकिंग. क्या है, मैं टीचर हूँ. टीचर को इतना पैसा नहीं मिलता है. ठीक है, यू आर फ्री टू कम एंड चेक माई बैंक अकाउंट. मेरे को कुछ छुपाना नहीं है, ताकि मैं इतना सबको इतना तो बता सकूँ, कुछ भी करना टीचर मत बनना. चलो, आजकल तो टीचर भी अभी क्या बोलूँ क्या हो गए. छोड़ो. चलो, नाउ वी विल गो फॉर लास्ट ईयर. राइट डाउन 2018-19, 2018-19, very weird transaction we are about to do. This is rarest of the rarest scenario. What is rarest of the rarest scenario? नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल तो छोड़ो, उसका ओरिजिनल कॉस्ट 38,000 था और बेचा 60,000 में. अचानक वो मशीनरी के अंदर हमको सोना नहीं सिल्वर मिला रहेगा. भी सोना इतना थोड़ी होता है 2 साल में. तो अचानक हमको उसके अंदर पता चलेगा मशीनरी इज मेड अप ऑफ प्रेशियस मेटल्स या ज्वेलरी, जिससे हमने मशीनरी को 60,000 में बेचा है. एनीवेज, ये दिस इज नॉट लॉजिकल. बाय द वे, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लिया है. एनीवेज, नहीं, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नहीं है ये, किधर से तो चुराया हुआ है. हाँ, ठीक है, लिखो. अभी जो दिया है उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. राइट डाउन. पहले तो वर्किंग नोट में जाओ. वर्किंग नोट में इट इज ऑन March 31st. सो लिखो, सेल ऑफ मशीन 2 ऑन 31st March 2019. सेल ऑफ मशीन 2 as on 31st March 2019.
ओके, ऐसा ही सेम फॉर्मेट बनाओ, प्लीज बी फास्ट। ऐसा ही एक फॉर्मेट बनाओ, लिखो ओरिजिनल कॉस्ट एस ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एस ऑन सी। जो लोग को रिवाइज करना है 1 मिनट में मुझे एक बताना है, प्लीज डोंट रिलाई ऑल ऑन दिस सिस्टम्स। हाँ, आज देखा तुम्हारे लेक्चर में क्या हुआ है। अभी जो लोग एब्सेंट हैं वो लोग ऐसा लगा रहेगा हाँ भाई वीडियो देख लेंगे, वीडियो दिखेगा ही नहीं। अभी इसमें फिर भी मैंने चालू किया है, बट वी नेवर नो, सो डोंट रिलाई ऑन ऑल दिस सिस्टम्स एक्सेट्रा, प्लीज बी रेगुलर। हम लोग जब आप जैसे थे, हमारे पास कुछ वीडियो नहीं था, मेमोरी के बेसिस पे हम लोग रिवाइज करते थे। चलो राइट डाउन, ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1/7/2015 38,000। नेक्स्ट लाइन लेस, अभी भी आप ऐसे कर सकते हो, लेस डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन दैट, बट इफ इट इज WDV मेथड आप ऐसा नहीं कर सकते हो। 2015-16 के ब्रैकेट में लिखो कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था हम लोगों ने, 9 मंथ्स। सो ब्रैकेट में लिखो 9 मंथ्स, उसका अमाउंट यहां पे अवेलेबल है 2850। सो अमाउंट कॉलम में लिखो 2850। नेक्स्ट लाइन 16-17 3800 ब्रैकेट में, 17-18 अगेन 3800 ब्रैकेट में। इसका टोटल करो, टोटल करोगे तो मिलेगा WDV एस ऑन no, it is not 31st March 2019, it is on 1/4/2018 1/4/2018। 2.5 साल तो हुआ है, 2.5 साल भी नहीं, 9 months एंड देन 2 years। विद दिस ईयर का डेप्रिसिएशन बाकी है। WDV एज ऑन 1/4/2018। व्हाट इज आंसर? सबट्रैक्ट एंड प्लीज टेल मी कितना? 27,550। Next line less. You can write current year depreciation. You can also write depreciation for 12 months क्योंकि last date पे बेचा है। Less depreciation for 12 months 3,800। चलो बी फास्ट, 3,800 माइनस करो, 27,550 माइनस 3,800, बोलो कितना था? 23,750। ओके, 23,750 के सामने WDV एज ऑन 31st March 2019, WDV एज ऑन 31st March 2019 Next line less, net selling price. We always used to write net selling price if you remember. Net selling price is 60,000। ह्यूज प्रॉफिट कितने का? ह्यूज प्रॉफिट 60,000 सब्ट्रैक्ट करो 36,250।
ओके सेम नंबर 1 2 3 डालो. डेप्रीसिएशन का एंट्री विल बी पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड. राइट ऑन क्रेडिट साइड पे March 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट. March 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 3800. अच्छा देखो लिसन केयरफुली. हाँ बाकी का जो अनसोल्ड मशीनरीज है ना उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आप March 31 का ही एंट्री पास करने वाले हो, तो ये कंबाइन कर सकते हैं आप लोग. यू कैन कंबाइन, अलग अलग भी कर सकते हैं ऑफकोर्स, वो तो हम कर ही रहे हैं, बट साथ में भी कर सकते हैं हम लोग. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3800, उधर ही आएगा March 31 बाय बैंक अकाउंट. बाय बैंक अकाउंट 60,000. बाय बैंक अकाउंट 60,000. चलो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी का पोस्टिंग कौन से साइड पे आएगा? यस, बिकॉज एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी. $36,250. रिमेनिंग अनसोल्ड मशीनरीज का डेप्रिसिएशन वी कैन कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वर्किंग नोट. यस, तीनों में सेम एज अबव आएगा. तीनों का टोटल कर दो. बोलो हाउ मच इज डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड मशीनरीज? ये तीनों का टोटल कितना आएगा? 26,600. March 31 बाय डेप्रिसिएशन 26,600. चलो क्लोज करके फाइनल बैलेंस बताओ. $192. $192,200. ओके, 192,200. ठीक है, वी विल कंटिन्यू टुमारो. वी विल कंप्लीट डेप्रिसिएशन टुमारो.